اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل نمبر 11، مریدی کی صفات، آداب اور شرائط کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، پس اگر تم میری پیروی کرتا ہے تو کسی چیز کی بابت سوال نہ کر یہاں تک کہ میں خود تیرے واسطے اس سے بات نہ کروں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم پر لازم ہے کہ سنو اور اطاعت بجا لاؤ، خواہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ واضح رہے کہ ارادت بڑی دولت ہے اور تمام نیک بختیوں کا بیج ہے۔ ارادت کوئی انسانی صفت نہیں بلکہ مریدی حق کی صفات کے انوار کا پرتو ہے۔ جیسا کہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے ہمیں چاہا اس نے اللہ تعالیٰ کو چاہا۔ مرید ذات حق کی صفات سے ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس صفت سے بندے کی روح پر تجلی نہیں کرتا اس وقت تک بندے کے دل پر ارادت کے نور کا عکس نہیں پڑتا اور مرید نہیں ہوتا۔ اور جب سعادت کا بیج عنایت الہی سے دل کی زمین میں پڑتا ہے تو چاہیے کہ اس غیبی مہمان کو ضائع نہ چھوڑ دیا جائے کہ اس نور کی ابتدا آگ کی چنگاری کی طرح ہوتی ہے جو دہکتی ہے۔ اگر اس پر گندک ڈال کر سوکھی لکڑیوں سے اس کی مدد نہ کی جائے تو بجھ جاتی ہے اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ بس اس آگ کی صفت والے نور کو کسی صاحب تصرف کامل شیخ کی گندک کے سپرد کرے تاکہ وہ صفات بشریت کے پروبال کو اس آگ پر رکھے اور جس سے اس آگ میں قوت آ جائے۔ بعد ازاں جب بھڑک اٹھے گی تو نہ سوکھی چھوڑے گی نہ گیلی، اور اصل مقصود جلدی حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص چاہے کہ اپنی پرورش اپنی علمی اور عقلی نظر سے کرے تو وہ ہرگز مراد کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ یہ علم استاداں ظاہری کی شاگردی سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں خطرہ ہے کہ ہلاک کے بور اور پھسلاوٹ کی وادی میں نہ جا پڑے اور ایمان میں زوال نہ آ جائے اور اپنے تئیں اپنے تصرف کے ہاتھوں ہلاکت کی وادی میں نہ ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اور اگر کسی شخص کو نفس اور شیطان دھوکہ دے، پیغمبر خدا اور اللہ تعالیٰ کا لطف اس راہ کے کافی و شافی رہنما ہے۔ اور قرآن مجید اور علم شریعت خود اللہ تعالیٰ کی راہ کا بیان ہے، اور اس راہ کا قافلہ سالار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفتاب سا جمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہے اور روشن چراغ کی مانند ہے۔ اور قرآن مجید اور علم شریعت اس راہ کا بیان ہے، لیکن اس کی مثال ایسی ہے کہ حاذق طبیب آئے اور حق تعالیٰ کے الہام نے ان کی مدد کی اور اسی رنج میں عمر بسر کی اور کوشش کرتے رہے اور قسم قسم کی بیماریاں اور مرضیں پہنچائیں اور دواؤں کی خاصیت کی واقفیت حاصل کی اور معجونے اور شربت تیار کیے اور ان سے دواخانے پر کیے اور طب کی کتابوں میں ان کی مفصل کیفیت لکھی اور طب میں بہت کچھ علمی اور عملی تصانیف کا ذخیرہ چھوڑا۔ بعض لائق شاگردوں نے ان سے علم سیکھا اور دواؤں کے قانون کی واقفیت حاصل کی اور ان طبیبوں کی خدمت میں رہ کر علاج معالجہ کرتے رہے اور اسی میں رہ کر تجربے حاصل کیے اور استادوں کے قانون کے موافق طبابت میں مشغول ہو گئے اور لوگوں کو جن میں ان علوم کو سیکھنے کی لیاقت اور استعداد تھی سکھایا اور اس کام میں کمال تک پہنچایا۔ اور اسی طرح زمانہ بزمانہ ہر گروہ کے شاگرد ہوتے چلے آئے۔ اب اگر اس وقت کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اسے علاج کرانے کی خواہش ہو تو وہ طبیبوں کی کتابیں دے کر معجونوں کے بنانے میں جو دواخانوں میں رکھی ہیں اپنی عقلی نظر کو صرف کرے اور طبیبوں سے ملتجی نہ ہو اور بے تجربہ اور بے پہچان نظر عقلی سے اپنا علاج شروع کرتے، نہ اسے بیماری کی حقیقت اور کیفیت معلوم ہو اور نہ دواؤں کی مقدار اور کیفیت کی واقفیت۔ اگر ایسا کرے گا تو ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ اسے چاہیے کہ اتباع اور صاحب تجربہ لوگوں کی خدمت میں جا کر ان کے تصرف کو تسلیم کرے اور جو معجون یا شربت خواہ میٹھا ہو یا کڑوا جو کچھ دے کھا پی جائے اور خود اپنا علاج آپ نہ کرے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جب دین کے تمام علوم جو فی قلوبہم مرضن ان کو دلی بیماری ہے کہ معالجہ سے تعلق رکھتے ہیں حاصل ہیں، جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ مومنوں کے لیے سراسر رحمت اور شفا پائے، بلکہ ایک ایسا دوائی خانہ ہے جس میں ہر قسم کی معجونیں اور شربت اور دوائیں جمع ہیں
खुश्क उतर सब कुछ कुरान मजीद में है और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के खासिक तबीब हैं, जिन्होंने हर बीमारी की शनाख्त और इलाज बड़ी उम्दगी से किया। बेशक तू सीधी राह की तरफ हिदायत करता है। और असहाब कबार रज़ियल्लाहु अन्हुम शागिर्दान खलफ हैं, जिन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म तिब हासिल किया और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में रहकर इल्मी तजुर्बे किए और हर एक मुआलजा में बदरजा कमाल पहुंचा। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे असहाब सितारों की तरह हैं, जिनकी पैरवी से तुम सीधी राह चलोगे। और ज़माना बवा ज़माना असहाबा के ताबईन इस इल्म और इन तजुर्बों को हासिल करते आए और ताबईन से तबा ताबईन ने आज के रोज तक इनमें से हर एक को अल्लाह ताला ने इस इल्म में खास नजर अता फरमाई, ताकि फी ज़माना कौम के मिजाज को पहचान कर कुरान मजीद और हदीस शरीफ के कानून के मुताबिक सही इलाज करें। हर एक मुजतहद सवाब पर होता है और दीनी तिब के उलूम में इल्मी और अमली बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन इस वक्त साहिब वाक़या बीमार अपना इलाज उनकी किताबों से बजरिया अपने नजरी अकली नहीं कर सकता, ख्वाह इस इल्म में कमालियत का दर्जा रखता हो। जैसा कि दनाव ने फरमाया है, बीमार की राह भी बीमार होती है, इसलिए कोई साहिब तजुर्बा हाजिक तबीब होना चाहिए, जिसे मुख्तलिफ मिजाजों की शनाख्त भी हो और इल्मी और अमली तिब के कानून की वाकफियत भी रखता हो। क्योंकि अगरचे बीमारी एक ही किस्म की होती है, लेकिन बच्चे, जवान, उदेड़ और सन रसीदा का मिजाज एक नहीं होता और एक ही उम्र के शख्सों का मिजाज एक सा नहीं होता। मसलन अगर 10 बच्चे हों तो हर एक के मिजाज, नब्ज, कुव्वत और ज़ौफ़ में फ़र्क होता है। हाजिक तबीब को मुनासिब है कि इन सब की शनाख्त करे और उन बारीकियों के मुआलजा के वक्त मलहूज रखे, ताकि तुम इलाज करो। बेशक जिसने मर्ज पैदा किया उसने उस मर्ज की दवा भी पैदा की है कि तरीका के मुताबिक मर्ज ज़ाइल हो जाए और सेहत हासिल हो। बावजूद इस बात के अगर खुद तबीब बीमार हो तो उसे किसी का इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमारी के सबब उसकी नजर में फर्क आ गया है। उसके लिए भी किसी तंदुरुस्त और सही नजर तबीब की जरूरत है, ताकि उसका इलाज उसे मुफीद पड़े। नहीं तो बीमार तबीब का इलाज मुवाफिक नहीं पड़ेगा। तबीब इलाज करता है, हालांकि तबीब खुद बीमार है। जब ये बात तहकीक हो चुकी तो अब हर एक को लाजिम है कि शैतान के धोखे और नफ्स के फरेब में ना आए और अपनी अक्ल और इल्म पर भरोसा ना करे। और जब इरादत का बीज दिल की जमीन में बोया जाए तो उसे बड़ी गनीमत समझकर इस गैबी मेहमान को प्यार करे और इसके पपोटे के मुताबिक मुनासिब ग़िज़ा दे, और उसकी ग़िज़ा हकीकत में मशाइख के पस्ताने विलायत के सिवा और कहीं नहीं। इस वास्ते की इरादत का बीज नौ पैदाशुदा गैबी बच्चे की तरह है, उसको ग़िज़ा भी गैबी पस्तान से देनी चाहिए। बस किसी कामिल शय की तलब पे फिरना चाहिए, ख्वाह मशरिक में हो या मगरिब में। उसकी खिदमत में हाजिर होकर उसके तसर्रुफात को तस्लीम करे, और अगर किसी शय की खिदमत पे पहुंचकर नफ्स बहाना और तज्जुब करे कि ये शय कामिल है या नहीं, तो सुनो और अतात बजा लाओ, पर कारबंद रहे और इस बात का यकीन करे कि हाँ हबशी गुलाम ही का तसर्रुफ क्यों ना हो, बहरहाल अपने तसर्रुफ से फिर भी बेहतर है, जैसा कि फरमाया है, ख्वाह हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। और इसी वास्ते मुशाइखे अलैहिमुर्रहमा ने फरमाया है कि अगर तू बिल्ली के तसर्रुफ में हो तो इससे बेहतर है कि तू अपने तसर्रुफ में हो, और चाहिए कि जो कुछ उसका माने हो या उसकी पाबंदी करे। मुशाइख की खिदमत से तमाम को इरादत के बाजू की कुव्वत से दूर करे और किसी उज़र का मुकय्यद न रहे, ताकि इस दौलत से महरूम न रह जाए, क्योंकि इस दौलत की महरूमी के नुकसान को दोनों जहान भी पूरा नहीं कर सकते। और हकीकत में जब तक मुरीद अपने वजूद से सैर नहीं हो जाता और अपनी जान और बदन का ख्याल नहीं छोड़ देता और एकदम बंदगी करता है, और जो बिलमुकाबिल आता है इससे कता ताल्लुक नहीं करता, वो इस बात का मर्द नहीं होता। जैसा कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, रुबाई, जो कुछ सच्चा मुरीद इस राह में दरहम बरहम करे और दे पटके और हार जाए तो अल्लाह ताला और अलबत्ता हम उन लोगों को जज़ाए खैर देंगे जो नेक काम करते हैं के मुताबिक
1000 गुना इसका इवज और बदला दुनिया और आखिरत में देता है। और उसके तमाम अकरबा और खवेशों में से हर एक को जिन्हें उसने छोड़ दिया था और उनके दिलों में अपनी मुफारिकत से जख्मी किया था, अल्लाह ताला एक खास दर्जा मर्तबा और सवाब इनायत करता है ताकि उनके दिल शिकस्तगी का इवज उन्हें मिल जाए। क्योंकि अल्लाह ताला की एक सिफ्त जब्बारी भी है और जब्बारी के एक मानी टूटे हुए का गांठना भी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए बेचारे, जो कुछ तूने मेरी खुदाबंदी की तलब में दरहम बरहम कर दिया था, अब मैं अपने फजलो करम से उसे दुरुस्त करूंगा। और जो दिल तूने मेरी मोहब्बत की खातिर खस्ता किया है, मैं अपने खुदाबंदी खजाने से उसका खून बहा दूंगा। लेकिन अगर तू मुझसे बाज रह जाए तो तमाम मौजूदात भी तेरी इस बेनसीबी का नुकसान पूरा नहीं कर सकती। बारगाह इलाही के एक मुकाशिफ और बुजुर्गों को खिताब इलाही हुआ कि मैं तेरे लिए जरूरी हूँ, बस तू अपने जरूरी को लाजम पकड़। तू अपनी जान के बगैर गुजारा कर सकता है, लेकिन मेरे बगैर तेरा गुजारा नहीं चल सकता। जब मुरीद हिम्मत के हाथ और इरादत की कुव्वत से दनीवी ताल्लुकात और रुकावटों को दूर करके शहर की खिदमत में आए तो उसे हस्ब झैल 20 औसाफ से मौसूफ होना चाहिए ताकि शहर की सोहबत की दाद दे सके और कामिल तौर पर सलूक राह उसके हाथ लगे। अव्वल, मुकाम तवज्जो। चाहिए कि इन तमाम बातों से जो शरअ के मुखालिफ हों, नसूह किसी तौबा करे और इस बुनियाद को बड़ी मजबूती से रखे, क्योंकि तमाम अहवाल और अमाल की बिना इसी पर है। अगर इस बिना में इब्तिदा में खलल आ जाएगा तो आखिर में भी जाकर खलल वाक़या होगा और तमाम बर्दाश्त की हुई तकलीफें रायगा जाएंगी। तौबा को तमाम मुकामात में इस्तेमाल करे, इस वास्ते के सलूक के हर एक मुकाम इस मुकाम के मुनासिब गुनाह है। नेक लोगों की नेकियां मुकर्रबों की बुराइयों के बराबर हैं। बस हर मुकाम में इस मुकाम के गुनाह से तौबा करे, जैसा कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूबियत के मुकाम की काबिलियत और ताकि अल्लाह ताला तेरे पहले और पिछले गुनाह बख्श दे की दौलत की कमालियत में भी तौबा के हक की रियायत रखते थे। बेशक वो मेरे दिल पर पर्दा सा हो जाता है और मैं हर रोज 70 मर्तबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। 2. ज़ुहद। चाहिए कि दुनिया से बिल्कुल मुंह फेर ले, ख्वाह माल हो या मर्तबा। अगर उसके मुतल्लिकीन हो तो मालो असबाब सबको अल्लाह ताला के मुताबिक तकसीम कर दे, और अगर उसके मुतल्लिकीन ना हो तो सबको शहर की खिदमत में रख दे ताकि दूसरे मुरीदों की मसलहत के लिए खर्च किया जाए, और उसे जिस कदर शेख रोटी कपड़ा दे उसी पर किनात करे। सोम। तजरीद। चाहिए कि मुजर्रिद हो और तमाम सबबी और नस्बी ताल्लुकात को उम्दगी से छोड़ दे ताकि उनकी तरफ न देखे, क्योंकि वो सब दुश्मन है। बेशक तुम्हारी जौरू और बाल बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं। चहारुम। अकीदा। चाहिए कि अहले सुन्नत व जमात का सा अकीदा रखता हो और बिद्दतों से पाक हो और आमाए सल्फ के मज़हब पर चले और तरीके की शरीयत में एहतियात को काम में लाए और तशबीह, तातील, रिफस और एतजाल से बरी रहे और हट दर्मी ना करे और अहले किबला की तकफीद से दूर रहे और लानत को जायज ना रखे। पंजुम। तकवा। चाहिए कि परहेजगार हो और खुदा से डरता रहे और खाने और लिबास में बड़ी एहतियात रखे, लेकिन मुबालिगा न करे ताकि वसवसे में न पड़ जाए, क्योंकि ये भी ठीक नहीं। और जहां तक हो सके अजीमत से काम करे और रुखसत के गिर्द न भटके और हत्तल मकदूर पाकीज़ा और साफ रहने की कोशिश करे, लेकिन इसमें गलू न करे ताकि वसवसे में न पड़ जाए। और तमाम अहवाल में इस चीज को छोड़ दे जो तुझे उस चीज की तरफ ले जाए जो तेरी तरबियत नहीं कर सकती को मलहूज रखे। शशुम। सबर। चाहिए कि अवामर व नवाही के तसरुफात के मातहत साबिर रहे और विलायत शेख की तरबियत से नामुरादी के प्यालों के पीने में सबर को काम में लाए और शेख का हुक्म बजा लाने में सख्तियां झेले और मलामत और तान को अपनी तबीयत में ना आने दे। और अगर इस किस्म की जरा सी बात भी उसमें जाहिर हो तो अपने आप से तकलीफ के साथ इसे दूर करे और हमेशा दीनी कामों में दीदा व दानिस्ता सब्र और बुर्दबारी करे, जैसा कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने झूठ मूठ सब्र किया अल्लाह ताला ने उसे फिल हकीकत सब्र अता किया। हफ्तुम। मुजाहिदा। चाहिए कि हमेशा नफ्स के घोड़े को मुजाहिदे की लगाम दिए रखे, मगर जरूरत के मुवाफिक उससे नरमी भी करे
اور کسی طرح بھی اس کی مراد اور حسب دل خواہ چیز نہ دے، اور اس بارے میں ثابت قدم رہے، کیونکہ نفس بھوکے شیر کی طرح ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیر کرے گا تو قوت پا کر تجھے کھا جائے گا، اور نفس کو ہمیشہ دینی کاموں میں لگائے رکھنا چاہیے، اور اگر تو اس کو دینی کاموں میں مشغول نہیں کرے گا تو وہ تجھے اپنی خواہشوں کے کام میں لگا لے گا۔ 8 شجاعت، چاہیے کہ مرد اور دلیر بنے تاکہ نفس اور اس کے مکروہ کی روک تھام کر سکے اور شیطانی مکر اور ہیلے میں نہ پھنس جائے، کیونکہ اسرا میں انسان صورت، شیطان سیرت اشخاص اور جن بہت ہوتے ہیں، ان کو شجاعت سے دور اور مغلوب کرنا چاہیے۔ 9 بذل، چاہیے کہ مرید میں بذل اور اثار بھی ہو، کیونکہ بخل بڑی بھاری قید اور حجاب ہے، اور بعض مقامات میں دنیا اور آخرت دونوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اور کبھی جان پر بھی کھیل جانا پڑتا ہے۔ 10 فتوت، چاہیے کہ جوان مرد ہو تاکہ ہر شخص کا حق اپنے مقام میں حد الوسع ادا کرے، اور اس حق گزاری کی کسی سے طمع نہ کرے، اور انصاف کرے اور انصاف نہ کرائے۔ 11 صدق، چاہیے کہ اس کے کام اور معاملہ کی بنا صدق پر ہو اور خدا سے راستی پیشہ بنے، اور جھوٹ اور خیانت سے دور رہے، اور خلقت سے امید بالکل قطع کرے۔ 12 علم، چاہیے کہ ضروری علم جو اس پر فرض ہے، واجب ہے، مثلا نماز، روزہ اور دوسرے ارکان کا علم سیکھے، اور زیادتی کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اپنی اصلی راہ طے کرنے سے رہ جائے گا، مگر ہاں اس وقت کرے جب وہ اپنے اصلی مقصود کو پہنچ گیا ہو۔ اگر مقتدائی کرنی چاہتا ہے یا پیشوائی اس نے حاصل کر لی ہے تو کتاب و سنت کے علوم کا مطالعہ اس کے لیے مفید ہے، نہ کہ مضر، اور ایسے علم میں کسی حالت میں بھی مشغول نہ ہو جو فائدہ نہ دے۔ 13 نیاز، چاہیے کہ کسی وقت بھی نیاز کو نہ چھوڑے، خواہ ناز کے مقام میں ہی ہو تو بھی اپنے تئیں تکلف سے نیاز کے عالم میں لائے، کیونکہ نیاز خاص عاشقی کا مقام ہے اور ناز معشوق کا مقام ہے۔ 14 عیاری، چاہیے کہ اس راہ میں چلاک اور چلتے پرزے آدمیوں کی طرح چلے، کیونکہ اس راہ میں بہت خطرناک کام پیش آتے ہیں۔ غیب اور شہادت میں اپنے آپ کو بے پرواہوں کی طرح ڈالنا چاہیے، اور عاقبت اندیشی نہ کرے، اور جان دینے سے بھی نہ ڈرے، اور دن میں 1000 بار پاؤں کے نیچے سر رکھ سکتا ہے تو رکھے، جیسا کہ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا ہے۔ غزل 15 ملامت، چاہیے کہ ملامتی صفت ہو اور کلندر سیرت، نہ ایسا کہ بے شرح کام کرے اور خیال کرے کہ یہ ملامت ہے، ہرگز نہیں، یہ تو شیطانی راہ ہے اور اس کی گمراہی اور دلالت ہے، اور یہی پچھلاوا اہل اباحت کو دوزخ میں لے جاتا ہے۔ ملامتی کے یہ معنی ہے کہ خلقت کی رد و قبول، تعریف و توہین اور نام و ننگ کی پرواہ نہ کرے، اور انہیں یکساں خیال کرے، اور خلقت کی دوستی اور دشمنی سے موٹا یا لاغر نہ ہو جائے، اور ان ازداد کو یکساں خیال کرے، اور تمام خلق خدا سے صلح رکھے، اور اپنے نفس سے لڑائی۔ مصنف کتاب علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ ربائی 16 عقل، چاہیے کہ عقلی تصرف سے اس کی حرکات مضبوط ہوں تاکہ کوئی کام شیخ کی رضا اور اس کے فرمان کے خلاف اس سے ظہور میں نہ آئے، کیونکہ زمانہ بھر کے رنج شیخ کے دل کی ناراضگی اور اس کی ولایت کے روح میں ہے، اور نیز جو کچھ اس کام سے مشقت اور محنت سے حاصل ہو اسے عقلی تصرف سے محفوظ رکھے۔ 17 ادب، چاہیے کہ اس کے اخلاق مہذبانہ اور مؤدبانہ ہوں، اور ان بساط اور ظرافت کی راہ اپنے اوپر بند رکھے، اور شیخ کی خدمت میں عزت، سکون اور تعظیم سے بیٹھے، اور جب تک اس سے بات نہ پوچھی جائے نہ کہے، اور جو کچھ کہے حلم، نرمی اور راستی سے کہے، اور ظاہر و باطن میں شیخ کے اشارے کا منتظر رہے۔ اگر اس سے کوئی خطا یا قصور سرزد ہو تو فوراً ظاہر اور باطن میں استغفار کرے اور عمدہ طریقے سے عذر خواہی کرے۔ 18 خلق کی خوبی، چاہیے کہ ہمیشہ خوش طبع اور خوش رہے، اور یاروں کے ساتھ تنگ خوئی اور چڑچڑاہٹ نہ کرے، اور تکبر، فخر، خود پسندی، دعویٰ اور طلب جاہ و ریاست سے دور رہے، اور تواضع، عاجزی سے بزرگ یاروں کی خدمت میں زندگی بسر کرے، اور چھوٹے یاروں سے رحمت
शफकत, नरमी और दिलदारी से पेश आए और अपना बोझ यारों पर न डाले, बल्कि खुद उनका बोझ अपने जिम्मे ले और मुतहम्मल और बुर्दबार बना रहे और यारों के साथ मुवाफिक रहने की कोशिश करे और उनके साथ मुखालिफत करने से दूर रहे और लोगों को भी नसीहत करे और खुद भी नसीहत सुने और मुनाजिरा, मुआरजा, लड़ाई, दंगा और दुश्मनी, झगड़े, कजिए से अलग रहे और यारों को इज्जत और हुर्मत और इरादत की निगाह से देखे और हल्के खुदा में से किसी को भी नजर हकारत से न देखे और यारों की दिलदारी और खिदमत के जरिए हमेशा कुर्बे हक की जुस्तजू करता रहे और हत्तल वसा दस्तरखान पर कुछ अपना हिस्सा इसार करे और दूसरों के हिस्से की तमाना करे और समा के वक्त अपने तई मजबूत रखे और बेहालती या हरकती वजद न करे और हालत के मौका पर यारों की मुज़ाहमत से परहेज करे और जहां तक हो सके समा को बातिन ही में पोशीदा रखे और जब गालिब आ जाए तो बकदरे जरूरत हरकत करे और जब तस्कीन हासिल हो जाए तो अपने तई संभाले और तकल्लुफ न करे और वजद और हालत को दिखावे के तौर पर ना करे। अगर देखे कि हालत के मौके या तवाजुद के मौके पर नफ्स को हिस्सा हासिल होता है तो वो हिस्स इसे ना दे और समा के वक्त यारों की निगहबानी करे और शरीदा वक्त ना बने और अपने इख्तियार से नारा ना मारे और हालत और वजद वालों की तरफ न्यास की निगाहों से देखे और उनके पास जाकर तवाज़ो करे और शैख की खिदमत में बाप्यादा हाजिर हो और जब सर शैख के कदमों पर रखे तो इस बात का ख्याल रखे कि कहीं सजदा न कर जाए, क्योंकि सजदा करना हराम है। हाथ पांव पर रखकर मुंह जमीन पर रखे लेकिन पेशानी न रखे और हत्तल वसा इस तरह हम नशीनी करे कि उससे किसी के दिल को आराम हासिल हो और दिलों को तकलीफ देने से किनारा कशी करे। 19 तस्लीम, चाहिए कि ज़ाहिर व बातिन में विलायत शाह के तसर्रुफात को तस्लीम करे और अपने तसर्रुफात को मिलिया मेट कर दे और शाह के हवाले अपने तई इस तरह करे जैसे मुर्दा नहलाने वाले के हाथ में होता है और बातिन में हमेशा हर काम के लिए विलायत शाह से इल्तिजा करे, खा शाह के रूबरू हो या उससे गायब, और ज़ाहिर व बातिन में शाह के अहवाल और अफ़ाल पर एतराज न करे और जो उसकी नज़र में खिलाफ मामूल मालूम हो उसे अपनी बीनाई की कसरी ख्याल करे। अगर खिलाफ शरा भी कोई काम शाह से ज़हूर में आए तो भी उस पर इतिकाद करे कि अगरचे मुझे फेल खिलाफ शरा मालूम होता है लेकिन खुद शाह खिलाफ शरा नहीं कर रहा और इस बारे में उसकी नजर निहायत कामिल होनी चाहिए और जो कुछ करे अज़रुए नजर करे और वो उसे पूरा कर सके। जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़या में कश्ती का तोड़ना और लड़के का मार डालना, महतर मूसा सलातुल्लाह अलैह को सब खिलाफ शरा मालूम होता था लेकिन हकीकत में ये फेल खिलाफ शरा न थे और खिज़र अलैहिस्सलाम की शर्त भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये थी कि अगर तू मेरे पीछे आता है तो मुझसे किसी बात की बाबत न पूछना जब तक कि मैं खुद इसका जिक्र तुझसे न करूं, यानी जो कुछ मैं करूं इस पर इतराज न करना और ना पूछना कि क्यों ऐसा किया, यहां तक कि मैं खुद इसे तुझसे बयान न करूं। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 3 मर्तबा इतराज कर चुके तो बादिज़ा खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस अब मुझ में और तुझ में मुफारिकत है। ये इस वास्ते है ताकि तुझे मालूम हो जाए कि इतराज करना हकीकी मुफारिकत का मौजिब है। अगरचे ज़ाहिर में जुदाई नहीं होती, मुरीद को लाजिम है कि किसी तरह भी इतराज ना करे और हमेशा तस्लीम का तरीका इख्तियार करे, क्योंकि इरादत शाह की तस्लीम कज़ा व कदर के अहकाम की तस्लीम की सीढ़ी है। जब तक शाह की इरादत को तस्लीम ना करेगा अहकाम कज़ा व कदर को भी तस्लीम नहीं कर सकेगा। 20 तफवीज़ यानी सौंपना, मुरीद को चाहिए कि अपने तई राह खुदा में सौंप दे और सिदक से ये कहे, मैं अपना काम अल्लाह ताला के हवाले करता हूँ और अल्लाह ताला की इबादत बहिश्त के लालच और दोज़ख के खौफ के मारे या कमाल की ख्वाहिश और नुकसान के डर के मारे ना करे, बल्कि अज़राह बंदगी और मोहब्बत करे और जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हो उस पर राजी रहे और किसी खुशी या रंज के सबब बारगाह इलाही से रूगर्दानी ना करे और अपने तई उसके सुपुर्द करते। मैंने सारे काम महबूब के सुपुर्द कर दिए हैं और बंदगी की राह पर साबित कदम रहे और सिद्दीक की शराइत को बजा लाता रहे और अगर 1000 मर्तबा भी ये हुक्म हो कि तू तलब न कर
तुझे नहीं मिलेगा तो फिदा भर भी काम को बेदिल होकर न छोड़ बैठ और किसी आजमाइश या जांच से हिम्मत हार कर न बैठ और काम को न छोड़ दे। मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमाते हैं, रुबाई और शेख की मुलामत से किसी तरह भी रूगर्दानी न करे और खा शेख इसे 1000 मर्तबा भी निकाल दे और दूर कर दे तो भी ना जाए और इरादत के मामला में मक्खी से कम ना हो। उसे खा कितनी ही उड़ाया जाए वो फिर आ बैठती है और उसको इसी वजह से ज़बाब कहते हैं। ज़ब आब जिसे दूर करें और फिर आ जाए ताकि अगर उस राह का मोर नहीं बन सकता तो कम से कम मक्खी तो हो रहे। मिसरा, जब सादिक मुरीद हत्तुल वसा इन शराइत को कायम रखे और शेख भी इन सिफात और कमालात से आरास्ता हो जिनका जिक्र गुज़िश्ता फसल में हो चुका है तो मकसूद और हकीकी मुराद बहुत जल्दी हरबान के हिजाब से बाहर निकल आते हैं और जमाल इलाही के सामने से पर्दे उठ जाते हैं। कासिद अपने मकसद, तालिब अपने मतलूब, मुरीद अपनी मुराद और आशिक अपने माशूक को पा लेता है। हाँ, जिसने मेरी तलब की उसने मुझे पा लिया। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।